میری بھی کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی. شاہ محمود کی کسی سے لڑائی کی وجہ سے نہیں آئے, نظریے کی وججہ سے آئے. پارٹی کی آرگنائزیشن کا کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی آرگنائزیشن پارٹی ہے MQM. اس پہ ڈسپلن ہے کارکنوں کے اندر. آپ نے شیڈو کیبنٹ کا آپ نے تصور دیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس میں پرائم منسٹر کتنے ہیں آپ کے پاس, اور ووٹنگ کے دن, الیکشن والے دن 1000 کینڈیڈیٹ آپ کو مل جائیں گے. کل کے جو حریف ہیں آج کے حلیف بن گئے, وہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے؟ خفیہ ہاتھ تو ہے, بڑا طاقتور خفیہ ہاتھ ہے. وہ ادھر والا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک منٹ میری بات سن. دیکھیں, آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی. آپ لاہور کے جلسے کی 2.5 لاکھ لوگوں کی سے اوپر لوگ تھے. مجھے ایسی آرگنائزیشن آج تک بتا دیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا اور جس طرح کا وہ جلسہ تھا. اور انشاءاللہ آپ کل ہمارا جلسہ دیکھیں گے کراچی میں, اس میں بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں گے. میں والنٹیئر کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سی بات. جو آپ ہاتھ کی بات کریں, میں ایک والنٹیئر کروں خود. میں نے 43 سال میرا پولیٹیکل کیریئر ہے. اس ملک کے اندر وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا خفیات ان کو یہ باتیں پہنچ رہی ہوں گی, لیکن 43 سال میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں عوام کے سامنے کہ میں نے آج تک کسی انٹیلیجنس ایجنسی خفیہ ہاتھ کو جرات ہی نہیں کبھی میرے سامنے آیا ہو, کوئی بات کی ہو. میں نے جنگ لڑی ہے. اس سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کون سی ہوگی جس کے اندر ہم جیسے لوگ جیلوں میں مارے کھاتے, جسمانی طور پر مارے کھائی ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ میں اگر کوئی سوچا ہوگا تو وہ میدان میں ہے, لیکن شرمندہ ہوں گے. ملے ہی نہیں ہے آج تک. تو وہ لوگ بھی ہیں اس طریقے سے. باقی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا کہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی خفیہ آج جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دل بدلتا ہے. میں اکیلا ہوں. میری بات سنیں, میرے رابطے کے میں اکیلا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ چلو سارے میرے ساتھ ہیں. میں بیٹھا تھا, میرا جو MP ہے میری اس میں کانسٹیچوئنسی میں, جہاز میں بیٹھے تھے. اسے میں نے کہا 1-2 دن ذرا رک جاؤ. اس نے کہا نہیں جی اب میں چاہ رہا ہوں. تو اس کا آپ لے جا رہے ہیں. اس نے رستے میں ٹی وی کو انٹرویو دیا. شاہد محمود ہے اس کا نام, ہے کوئی ادھر؟ یہ اس نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. اس نے کہا میں بالکل استعفیٰ دیتا ہوں, میں پریس پارٹی میں آ گیا ہوں. جب میں نے کیا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا. میں نے اپنی شاہد محمود صاحب ہے میری کانسٹیچوئنسی کے. ایک منٹ سر, کنڈا کر لیتے ہیں, کنڈا کر لیتے ہیں. یہ بچی کر رہی ہیں. جائز ہو یا غلط ہو, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہی لیبل لگا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. آپ کو سب اصولوں کی وجہ سے جانتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی وجہ سے آپ پہ بھی یہ لیبل لگایا جائے گا, غلط یا درست, کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ آپ کے تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد جانا ثنا انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے ہائی جیک کر دیا ہے. میں بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں رات 2 بجے تک تو جس اسٹیبلشمنٹ کا ہائی جیک ہوا تھا وہ یہ میری اپنی سابقہ پارٹی تھی. اب ان کے نام نہیں لینا. 2 بجے تک تو انہیں مجھے لاہور میں باندھے رکھا. پھر وہاں سے ہم آئے ملتان, تو پھر آپ کے میڈیا والے نے 5 بجے مجھے پکڑ کے انہوں نے باندھے رکھا. پھر اس کے بعد پارٹی کے کارکنان آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ بکھر جائیں گے, آپ مہربانی کریں نہ جائیں. مجھے یہ بتائیں 2 دن اور 2 راتوں سے میں جاگ رہا ہوں, 1 منٹ مجھے سونے نہیں دیا پارٹی والوں نے بھی. تو میں
वो एस्टेब्लिशमेंट किधर है, वो है कहाँ? मैं और मुझे आप एक मिनट मुझे आप 35 साल से जानते हैं, कभी मुझे किसी ने कंट्रोल किया? एक बात आपने की थी कि वो मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं वैसे उन दोस्तों से कह रहा था, रात भी आपके सामने कहता हूँ, ये अजीब बात है। एक चीज़ यहाँ पे हर पार्टी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को कंडेम करती है, फिर उसकी चाहते ये हैं कि वो उनकी मदद करे, और जब वो उनकी मदद करना शुरू कर दे तो इल्ज़ाम ख़त्म कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये बल्कि वक्त आ रहा है कि क़यादतें वो जन्म लें, पार्टियाँ वो जन्म लें, एस्टेब्लिश हों, जिनको एस्टेब्लिशमेंट के सहारे की ज़रूरत ना हो, छड़ी की ज़रूरत ना हो। एक मिनट जी, बारी बारी करें, पहले इनकी टर्न हम कंडक्ट करेंगे। दूसरा सवाल आपसे ये कि जाहिर बात है आपकी नून लीग से आपकी खासी लंबी एफिलिएशन रही है, तो जाहिर बात है कोई उसूली मौक़िफ़ के ऊपर अगर आपको अब नून लीग के ऊपर या नून लीग की कायदे के ऊपर आपको तनकीद करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? मैं देखिए, अगर उसूली बात हो, मुझे ये ज़रा बीबी ये बताएं, जब मैं कैद के साथ बैठा होता था तो मैं तारीफ करता रहता था। हाजी साहब, सिद्दीक अल फारूक ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि हाजी साहब अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। क्या कहेंगे आप? और ये इतनी पुरानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए 4 साल मैंने इंतज़ार किया इमरान को शामिल होने के लिए। एक मिनट सर, एक मिनट इसके बाद देखिए, जावेद हाशमी साहब ने ना कोई कंडीशंस लगाई, ना अभी हमारी कोई बात हुई है। हाशमी साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके सामने इनकलाब आ रहा है, ये नजरिया आ रहा है, ये नजरियाती तौर पे हमारे साथ आ रहे हैं। ये जो कई जी मेरे लिए क्या है, ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आ रहा है, और तब्दीली के जो लोग ले सकते हैं सब कुछ गवर्नमेंट में बैठ के, सारी पार्टी तो गवर्नमेंट्स में है, वो छोड़ के एक पार्टी में आ रहे हैं जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है सिवाय नजरिया। मैं थोड़ी सी अंदर की बात ये है कि मेरी इमरान खान से इनसे मेरी मुलाकात हुई, उसमें बात ये इन्होंने सिर्फ जो कही, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। फिर कैसे होगा या नहीं होगा, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा, इन्होंने कहा क्या सूरत होगी, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने अलबन कह सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तो उदों का मैं पीछे कभी गया ही नहीं और मुझे पता भी नहीं है। इन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो मैंने कहा फिर उदो होते रहेंगे, मैं हाजिर हूँ। अब बात ये दिल में कहेंगे कि यही बात हुई है कि इन्होंने कहा यही सच है। के बाद शरीयत का ख्याल है 70% खवातीन आपको देखने आती हैं और 50% नौजवान भी आपको देखने आते हैं, तो आप ये बताइए वोट डालने ये आएगा? पहला सवाल आपसे। आप राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में बड़े रिमार्क्स दिए। राना सनाउल्लाह, वो बात हो गई है जी इसके बारे में, उसको जवाब दे चुके हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, मैं बताऊं? देखें, एक अंग्रेजी का एक कहावत है कि एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। एक वक्त पे आप लगे रहते हैं क्योंकि अल्लाह अल हक है। एक दिन वो सच सामने ले आता है, और जो आप बात कर रहे हैं, मैं 15 साल से एक ही बात कर रहा था, मैंने कभी चेंज, आप मुझे बताएं वॉर ऑन टेरर पे कभी मैं चेंज हुआ हूँ?
आप ये बता दें कि कभी करप्शन पे, आज़ाद अदलिया पे, ये 15 से सारी चीज़ें पुरानी हैं। VIP कल्चर पे सारी चीज़ें मैं 15 साल से कह रहा था। अल्लाह अल हक है, लोगों को वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं। और ये एकदम नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता 3 साल से हो रहा था। मैं पिछले साल से आप सबके मीडिया पे कहता जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी नहीं, स्वीप करेगी। मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, एक मिनट, मजाक उड़ाते थे क्योंकि नीचे से मुझे नजर आ गया था। देखिए मेरी बात सुनना प्लीज। अवाम तब्दीली चाह रही है, वो मुझे नीचे से नजर आ गया था 1.5 साल पहले, बल्कि ये चीफ जस्टिस की जो मूवमेंट थी वकील की, उधर ही नजर आ गया था कि लोग एक चेंज चाह रहे हैं। वो चेंज थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि और चीजें हो गई, इलेक्शन हो गया, लोगों ने उम्मीदें लगा ली कि शायद जमहूरियत आई है, नई गवर्नमेंट कुछ करेगी। वो फिर जैसे ही नीचे जानी शुरू हुई, फिर वो चेंज की जो तहरीक है वो ऊपर आनी शुरू होगी। और अब वो जो चेंज की तहरीक थी वो सुनामी बन चुकी है। ये अब इसे कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। सियासी तनाई का शिकार नून लीग, आपके फैसले के बाद आप इसको नून लीग को कहाँ देखते हैं? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं। एक बात तो ये है कि ये मुझे 4 महीने के अंदर ये ख्वाब नहीं आया दिन दिहाड़े के तहरीक इंसाफ। खान साहब ने मुझे फ़ोन किया पेशावर से कि मैं ड्रोन हमलों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने कहा खान साहब मैं अभी घर, उनका नहीं आ जाऊँ। मैंने उसी वक्त इनकी बात पे लबैक कहा और वहाँ पहुँच गया। ये 8-6 साल की बात पहले की है और पार्टी से भी नाराज़गी हुई। मैंने कहा एक सच्चा बंदा सच्ची बात के लिए बुला रहा है मुल्क के लिए, तो मैं क्यों ना जाऊँ। वो इसलिए ये हमें अब नज़र नहीं आ रहा, ये बातें चलती। अच्छा अब जो आप PMLN मैं तो उससे आ गया। मैं तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक मेंबर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मुझसे बेहतर जानते हैं, वो खुद उसको बता दें। दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे तहरीक इंसाफ में? एक मिनट इस तरह ना करें, एक सवाल के बाद इनका है, फिर आपको मैं बारियां सबको लगा बारी बारी कर ले, आसानी हो आपसे मेरा सवाल है कि इस वक्त आपकी क़यादत में मैक्सिमम जनूबी पंजाब की क़यादत इस वक्त नज़र आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि जो जनूबी पंजाब के अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं, आप एक गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे बाद में? देखिए जी, जनूबी पंजाब सारा पाकिस्तान क्या चीज़ चाह रहा है? इंसाफ चाह रहा है। लोग अदल और इंसाफ का कानून चाहते हैं। अदल और इंसाफ का मतलब इनकलाब। देखिए ना, आप स्टेटस को के खिलाफ इस वक्त लोग तंग आए हुए हैं। हर जगह लोग नाखुश हैं। कोई जनूबी पंजाब अकेला इलाका तो नहीं है। आप कहीं पाकिस्तान में चले जाएं, आवाम से पूछ लें, लोग चेंज चाह रहे हैं। तो वो एक देख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस जमात में वो मिलेगा। आप जिधर ये सूबों की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक अवाम की एक बिल्कुल ठीक उनके दिलों से एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर गवर्न होनी चाहिए, हमारे गवर्नेंस सिस्टम बेहतर। वो समझते हैं कि अगर यूनिट छोटे हों तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमारी आसान हो सकती है। इसके ऊपर बिल्कुल हमारी पार्टी ओपन है। हमने फैसला किया हुआ है कि इसके ऊपर मुकम्मल हम डिबेट करके एक आपके सामने एक मुकम्मल खाका पेश करेंगे। एक मिनट भाईजान, एक मिनट आप हो गए बस, एक मिनट आपके हो, एक मिनट इधर की बात भाईजान बोले आप। अपना दिल वसी कर दिया और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, उनके लोग आपके पास आ रहे हैं। अगर MKM की तरफ से कोई आपके पास आता है और आपकी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे? देखिए, जब कोई आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर रिव्यू करेंगे, लेकिन मेरी अब लड़ाई कराने की ना कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ अमन के लिए आए हुए हैं, हम सबको इकट्ठा करने आए हैं। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया यहाँ। जी आपकी बात नहीं सर, इसके बाद आपकी पूरी सियासी जिंदगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही है और अगर आज जब तहरीक इंसाफ पर एक जानिब से ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पे काम करे, आपने इस वक्त का क्यों इंतखाब किया? और दूसरा मेरा खान साहब से ये सवाल, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, पहले मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे कोई ये बता तो दे, मुझे एक चीज बता दे कि एस्टेब्लिशमेंट का हमारे साथ कैसे ये कह सकते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही है। मुझे ये बताएं, जो लाहौर का आपने जलसा देखा था,
जनरल मुशर्रफ का आपने जलसा देखा होगा 12 मई को इस्लामाबाद में, एस्टेब्लिशमेंट सारी साथ, आर्मी चीफ सारा, पूरी कमेटी साथ, कि क्या वो जलसा देखा और जो लाहौर का देखा, क्या आवाम सब थी, मीडिया था? आपको फर्क नजर आ जाना चाहिए कि जिधर लोग लाए जाते हैं और जिधर लोग खुद आते हैं। मखदूम जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में कर रहे हैं और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन उसमें अजान ज़ोहर का वक्त हुआ है और इस वजह से सहाफ़ियों के सवाल जवाब का सिलसिला रुका हुआ है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जावेद हाशमी को खुशामदीद कहते हैं और उनका ये भी कहना था कि आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। जावेद हाशमी मसलहतें खत्म करके उसूलों पर कायम रहते थे। उनका कहना था कि उनका मकसद पाकिस्तान में नया निजाम लाना है, उन लोगों को साथ मिलाना चाहते हैं जो हमें मकसद की तरफ लेकर जाएं। उनका कहना था कि जावेद हाशमी नजरियाती बुनियाद पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए जावेद हाशमी ने कोई शर्त नहीं रखी थी। मखदूम जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में इमरान खान की तारीफ की और उनका यह कहना था कि इमरान खान को बहैसियत क्रिकेटर वो शुरू से ही पसंद करते हैं और इमरान खान क्रिकेट के चैंपियन के साथ साथ सियासत के भी चैंपियन हैं। उनका कहना था कि मुल्क में सियासत के चैंपियन सिर्फ इमरान खान हैं। असेंबली में सियासतदानों के असासे जाहिर करने की बात सबसे पहले 1993 में उन्होंने की थी और लूट मार करके लोग चले जाते हैं इस मुल्क में और कोई पूछने वाला नहीं होता। मुस्लिम लीग नून से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उनके रवानगी के वक्त जब कारकुनान उनकी गाड़ी के सामने लेटे थे और उनके घर के सामने जब धरना दिया था, उस बारे में उनका यही कहना था कि पार्टी कारकुनान को मेरी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का गम है, लेकिन मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूं। जी हाँ, इमरान खान ने जावेद हाशमी जैसे सीनियर रहनुमाओं की शमूलियत के तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइन करार दिया है। उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के बाद जावेद हाशमी की आमद और शमूलियत से हम अपने मकासद को जल्द हासिल करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान में एक प्रॉपर निजाम हुकूमत राइज करना है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें कि नून लीग के नायब सदर जावेद हाशमी के तहरीक इंसाफ में शमूलियत के इम्कानात हैं। एक चीज कंफर्म है कि आज नहीं तो कल जावेद हाशमी और उनके साथ जो 15 सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबर सबसे पहले गुज़िश्ता रोज समा पे नशर हुई थी और समा ने ही सबसे पहले इस खबर को नशर किया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी जारी है, लेकिन ज़ोहर की अजान की वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोशी छाई हुई है और सवाल और जवाब का जो सेशन था वो अभी रुका हुआ है। जावेद हाशमी का कहना है कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, क्योंकि इमरान खान मेरी नजर में सियासत के चैंपियन है। बतौर क्रिकेटर मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करता हूं। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि ये तहरीक पाकिस्तान की तहरीक है। हम पाकिस्तान को एक महफूज पाकिस्तान बनाएंगे, बुहरानों से निकालेंगे और खुशहाली की जानिब इसे लेकर जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपने खिताब में उनका कहना था कि हमारा मकसद खुशहाल, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है। 25 दिसंबर को अमली नजरिया पेश किया जाएगा। जो जलसा है उस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमली नजरिया पेश किया जाएगा। मखदूम जावेद हाशमी ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मियाँ शहबाज शरीफ उनके भाई हैं और उनके बेतकल्लुफ दोस्त हैं और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से उनका कोई झगड़ा नहीं है। वो आज भी उनकी उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह वो पार्टी में मौजूद थे जब उनकी करते थे। उन्होंने कहा कि लोग समझें या नहीं, पाकिस्तान में इनखिलाब आ रहा है और वो इसी वजह से तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं। उनका यह भी कहना था कि तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ में शमूलियत की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो तब्दीली के नारे की वजह से आगे आई है और तहरीक इंसाफ में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो तब्दीली चाहती है और हम सब मिलकर
पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। आपने कहा था कि कराची में एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा। इस सुनामी में इस वक्त हम कराची और सिंध के असरात बहुत कम, पंजाब के सुनामी के असरात ज्यादा देख रहे हैं। क्या कराची का कोई सुनामी में हिस्सा है, बताएं। जी जी जी। पहली बात तो ये है कि सिंध की सुनामी का आगाज घोटकी से हो चुका है और इंशाअल्लाह फरवरी में आप उसकी दूसरी किस्त देखने वाले हैं। सुनना जरा मेरी एक बात है, ना सिर्फ मैं इस्तीफा दूंगा, मेरी बेटी भी है ममूना हाशमी, वो भी इस्तीफा देती है। एक मिनट सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ। ये अभी सवाल पूछा गया था कि जनाब आपके पास प्राइम मिनिस्टर बनने के बड़े कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको सबको ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये मेरिट के ऊपर पार्टी होगी, यहाँ बड़े बड़े नाम बैठे हैं, कोई भी अगर पार्टी अहल समझती है वो वजीर आजम बन सकता है इस पार्टी के अंदर। इमरान खान कोई लाइफ चेयरपर्सन नहीं है। मैं बड़ा खुशी से अगर कोई भी डिजर्विंग होगा वो हम उसको आगे लेके आएंगे। ये कोई लाइफ चेयरपर्सन हाशमी साहब, आपसे सवाल ये है कि कल का जो मुल्तान में मुत्तहिदा का जलसा हुआ है उसके बारे में इत्तलात ये हैं कि आपने और मखदूम हाशमी साहब की पूरी कोशिशों से वहाँ पर जो है वर्कर्स को भेजा गया, कामयाबी हुई है। क्या इस वक्त कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपके कोई ताल्लुक? देखिए बात सुनिए, वहाँ जलसा मैं कहता हूँ बात कर रहे हैं भाई। MQM ने जो जलसा किया है कोई आदमी तो नहीं भेजता, लेकिन वो अगर एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को सियासी कुव्वत के तौर पर जैसे कर रहे हैं तो उनको तो खुशामदीद से उनकी जिम्मेदारी भी है और हक भी है। पाकिस्तान पे उनका हक है, मुल्तान पे उनका हक है, तो इसलिए और उनका ठीक जलसा हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा जलसा। अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ ज़रदारी के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब या हाशमी साहब के कौन खड़ा होगा दोनों के उनके मुकाबले में? जो भी खड़ा होगा सुनामी के सामने वो खड़े नहीं होंगे। एक मिनट सारी दुनिया में लाइव जा रही है। एक सेकंड लास्ट टू करे सवाल करें, करने दो यार, करे भाई करे, आपके भाई चेयरमैन है, मौका तो दे। चले करे सर करे। सर मेरा सवाल है कि आज चीफ आर्मी साहब जनरल परवेज कियानी साहब ने ऐलान किया है मर्द आइन की हैसियत से कि मुल्क में फौज नहीं आएगी इक़्तिदार पे और जमहूरियत की हम हिमायत करते हैं। इस मुल्क में गैर आइनी जो हुकूमत है वो 10-10 साल 11-11 साल अपनी मुद्दत पूरी करती है। जो वोट के जरिए और आइन के जरिए हुकूमत में आते हैं 2 साल के बाद उनके खिलाफ साजिशें होती है। मियां साहब अपने इमरान साहब भी हुकूमत में आने वाले हैं, आप बताएं आप 2 साल बाद क्या इनके खिलाफ भी साजिश हो जाएगी? पहली बात जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि वो कोई एडवेंचरिज्म का इरादा नहीं रखते, वो किसी हुकूमत को उल्टाने का इरादा नहीं रखते और वो आइन का और जमहूरियत का एहतराम करेंगे। हम इस बयान को हम उसको वेलकम करते हैं। ये अच्छा बयान है और ये एक नई सोच को उजागर कर रहा है कि हमारे कौमी इदारे आज जमहूरियत को तक़वियत देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ी इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट बैठ चुकी है, मार्ज़े वजूद में आ चुकी है और जो कह चुकी है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि नजरिया जरूरत को हमने दफन कर दिया है। तो इन हालात के बाद कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन की गुंजाइश मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की हिमायत नहीं करेगी। एक सेकंड। दूसरा सवाल कि ये हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से खुद गड़े में गिर रही है। इनकी गवर्नेंस
بہت پور ہے. کرپشن جیسے کہ ہاشمی صاحب کہہ چکے ہیں, خان صاحب کہہ چکے ہیں, عروج پر ہے. لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں, لوگ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ملک میں تبدیلی آئے گی, لیکن عوام لائیں گی اور جمہوری طریقے سے لائیں گے. انہوں نے کہا کہ کیا تحریک انصاف جب 2 سال میں پاور میں آئے گی تو اس کے خلاف بھی سازشیں ہو جائیں گی. میں اس کا میری بات سن رہے آپ. اگر تو تحریک انصاف پرفارمنس دے گئی, ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی, اور اگر پرفارمنس نہیں دی میں خود ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ایک منٹ کنڈکٹ کر لینا, اس کے بعد کر لینا سوال, اس کے بعد سوال کر لینا ہے. دوسرا ایک موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی موجودگی میں انتخابات میں حصہ لیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے پرانے لوگ ہیں وہ خائف ہیں کہ نئے لوگوں کے آنے سے ان کے لیے اسپیس کم ہو رہا ہے. یہ لاسٹ کوشچن ہے, میں اس کا جواب دینے لگا, پلیز سن لیں ذرا. سر میمو گیٹ کا ایک منٹ, نہیں وہ ہو گیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جی, اگر تو میں نے کل الیکشن کمیشن کا ایک بیان پڑھا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے تو پرانے الیکٹرل رولز پہ ہوں گے. پرانے الیکٹرل رولز کا مطلب کہ 3 کروڑ 70 لاکھ جعلی ووٹ اور 3.5 کروڑ ووٹ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. یہ الیکشن نہیں ہوگا, یہ فراڈ ہوگا. میں آج اب سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر پرانے الیکٹرل رولز پہ انہوں نے, حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کوشش کی الیکشن کروانے کی, ہم الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے. ہم یہ فراڈ ہونے ہی نہیں دیں گے, ہم سڑکوں پہ ہوں گے. میری بات سنیں, ہاں نہیں, ہم فری اینڈ فیئر جو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے صاف اور شفاف الیکشن کی ہم ہونے دیں گے. یہ تو مجھے بتائیں 40% ووٹ ہی جب آپ کی فراڈ ہے, الیکشن کون سا؟ یہ پچھلا الیکشن تو اس میں کتنی نوجوانوں کی ووٹ ہی نہیں, اور جو ووٹ ہے اس کے اندر 40% فراڈلنٹ ووٹ ہے. یہ الیکشن کون سا ہے؟ اس لیے ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی الیکشن آ گیا تو پرانوں پہ ہوگا. پرانوں پہ کیا مطلب ہوگا الیکشن؟ یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں, اس کا مطلب تو یہ فراڈ ہوگا. اور دوسرا آپ کا سوال تھا یہ کہ پارٹی میں جو پرانے لوگ ہیں وہ خائف ہیں کہ نئے لوگوں. دیکھیں, اس پارٹی کے اندر جو نظریاتی ورکر ہیں, جو اس پارٹی میں پاکستان کے نظریے کے لیے 15 سال قربانی دی تھی, وہ سب خوش ہیں. ان میں سے اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے تو وہ غلط پارٹی میں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مخدوم جاوید ہاشمی کے ہمراہ اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. مخدوم جاوید ہاشمی نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو گزشتہ روز سما نے اپنے بلیٹن میں نشر کی تھی.